हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे अर्थ एज अ इंटीरियर एंड इट इज़ अ मटेरियल। इसका मतलब है जो है भूगर्भ और उसके पदार्थ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में अगर भूगर्भ और उसके पदार्थ हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here is the most important topic arrive here. There is soil erosion. There is the most important for the all class student. There is a soil erosion. There is removal of soil at the greater rate than its displacement by nature agency. The natural agency here, a water, wind. There is a natural agency is known as the soil erosion. There is the most important. The here first here types of the soil erosion. What is the type of soil erosion here? The soil erosion is of 4 types mainly: the wind erosion, sheet erosion, rail erosions, and gully erosion. There is the most important 4 here, erosion of 4 types. The first here, the wind erosions. The wind carry away to the west is the quantity of fine soil particles and sand from a desert and spread it over adjoining or cultivated land, and thus that destroy their fertility. And this type of erosion is known as a wind erosion. It is take place in and around all desert regions of the world. In India, over 1 lakh kilometer of land is under third desert. Third desert is a very important and spread over part of Gujarat, Haryana, Punjab, and Rajasthan state. This area is subject to intense of wind erosion. There is the most important here. The third desert is the most important of the wind erosions, and also is a Gujarat, Haryana, Punjab, Rajasthan state. There is an area are subject to intense of wind erosion. The next here are sheet erosion. The water when to move a sheet take away thick layer of soil. There is the most important thick layer of soil, and this type of erosion is called sheet erosions. There is called sheet erosions, and such types of erosion is the most commonly along the river bed and area affected by floods. In the long run, their soil is a completely excluded due to the removal of topsoil or become a infertility. That is called to the sheet erosions. And the next here, a real erosion. There is a removal of surface material, usually of soil, by the action of running water. By the action of running water, the process create a numerous teeny channels or rill. There is a teeny channel is called rills, a few centimeter in a depth, and the most which carry of water only during to the storms. The next here is a gully erosion. There is the most important here. Gully erosions come to the many times of exam. When the water move as a channel down to the slope. When water move a channel down to slope, it is a scopes and out the soil and the form of gullies, which gradually is a multiply, and it is a long run spread over to the wide area. And these types of erosion is called gully erosion. And the land thus are distracted is called bad land, where
Venice. In our country, two rivers is a Chambal and Yamuna are famous from their revenues in the UP and MP state. There is a most important for a gully evasion and this side. The controlling factor is the last two types of erosion are the velocity and amount of surface runoff. The erodibility of the soil, nature of slope, there is a texture and structure of the soil, the nature of participation and vegetation cover. The speed and frequency of winds are dust, storm, and vegetation covered by the controlling factor in a wind evasion. The sea waves are responsible for endings of soil along to the coastal formed by as a big rock such as a limestone, etc. And this type of erosion is a widespread along is a Kerala coastal and substanding soil erosion is also caused by the changing river channels and snowfall, especially in a river is a band sign and the hilly region. This is the most important fact here or conclusion. There is the most important point arrive. The removal of soil material and naturally or by human action is called soil erosion. There is definition the most important. What is the soil erosion? There is removal of soil material naturally by human action is called soil erosion. The soil erosion is a four types mainly of wind erosion, sheet erosions, rails erosion and gully erosion. There is the most important and also here the factor influencing soil erosion are velocity and amount of surface of runoff, nature of slope, texture, structure of soil and frequency and speed of winds. There is a most important 3 point here as like a summary. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस में है वो ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन के विषय में यहाँ जो है ऐसा समझाया जा रहा है जो कि काफ़ी सफिशिएंट रहेगा और एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कहते हैं मृदा अपरदन जो है प्राकृतिक कारक दो कारकों पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो जल होती है, एक पवन होती है, जो मृदा अपरदन के लिए सबसे बड़ा जो है उत्तरदायी होती है। मृदा अपरदन के पुण्य स्थान से अधिक दर से जो है मृदा निष्कर्षण को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कहीं पर अगर कोई ज़मीन धरती है वहाँ तेज़ी से अगर मिट्टी की बहाव हो रही है तो इसको मतलब है कि वहाँ मृदा अपरदन हो रही है। यानी यही बात बताया गया है कि मृदा के पुण्य स्थान से अधिक दर से यानी काफ़ी अधिक अमाउंट से जो है निष्कर्षण होना मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा अपरदन जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पवन अपरदन हो जाता है, परतदार अपरदन होता है, नालिका अपरदन होती है और अब नालिका अपरदन होती है, जिसको हमने इंग्लिश में भी देखा था कि विंड्स जो है इरेजन्स होती है। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका रेल्स इरेजन्स थी और आपका जो है गुल्ली इरेजन था। तो ये सारे इरेजन्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान्यता रखता है। सबसे पहले हमारे समक्ष यहाँ आता है पवन अपरदन। देखिए पवन अपरदन जो है कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवन बहुत बड़ी मात्रा में बालू और मिट्टी को महीन कणों को मरुस्थलीय प्रदेशों को जो है उड़ाकर निकटवर्ती खेती वाली भूमियों पर जो है बिछा देती है। आपने देखा भी होगा कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो कई मात्रा में जो है अपने साथ धूल कण लेके चली जाती है, तो सारे के सारे जो होती है मिट्टी के कण होते हैं। इस प्रकार ये जो है इन भूमियों की उर्वरकता को भी नष्ट करते हैं और इस प्रकार के अपरदन को हम पवन अपरदन के नाम से जानते हैं और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। इस प्रकार के अपरदन को पवन अपरदन कहते हैं और इस प्रकार का अपरदन संसार के मरुस्थल तथा निकट जो है इनके निकटवर्ती प्रदेशों में हो रहा है। भारत में थार मरुस्थल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को घेरे हुए है और थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है और ये पवन अपरदन के अत्यधिक प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ये समझ गए हो गई पवन अपरदन जो होती है यानी जो है मिट्टी के जो है महीन परतों को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं और ये कई क्षेत्र जो है मानने में मरुस्थलीय क्षेत्रों में काफ़ी होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए था। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है परतदार अपरदन। देखिए जब कहते हैं जल जब एक परत के रूप में बहता है तो मृदा की पतली परतों को अपने साथ बहा ले जाता है। यानी जब कोई जो है जल जो है बहती है तो आपने देखा भी होगा कि उसके साथ एक छोटी सी जो है परत बहती चली जाती है और इस प्रकार के अपरदन को जो है परतदार अपरदन कहते हैं
और इस प्रकार का अपर्दन सामान्यतः नदी घाटी या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिला है। जहां बाढ़ आती रहती है वहां पर इस तरह के अपर्दन जो है आम बात है। आपने देखा होगा कि बाढ़ आ जाने के बाद जो होता है घरों में कीचड़ सी भर जाती है, तो वही महीन कणों की बात किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसे हम प्रधान अपर्दन के रूप में देख सकते हैं। और ये जनरली बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है, तो इसलिए फ़ायदा भी रहता है, लेकिन नुकसान तो अत्यधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार के अपर्दन को लंबे समय में मृदा की जो है ऊपरी परत हट जाती है और मृदा जो है अनुपजाऊ भी हो जाती है। यानी जहाँ से ये बह के आती है वो क्षेत्र जो होता है अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मिट्टी जो होती है पानी के साथ बहा के जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों में ले जाता है, जिसकी वजह से जिस क्षेत्र से वो बहा है वहाँ पर जो मिट्टी हो जगह होगी अनुपजाऊ हो जाएगी, और वहाँ पर जो है जहाँ पर ये बह के जाएगी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपजाऊ हो जाएगा। अगला जो है हमारा है नदी का अपर्दन। देखिए धरातलीय पदार्थ और सामान्य मृदा का बहते हुए जल के धारा निष्कर्ष नदी का अपर्दन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सी जो है क्षुद्र सरिता वर्षा ऋतु में बन जाती है, और इसकी गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर होती है और यह अपर्दन भी करती है। इसी नदिका के अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अवनालिका अपर्दन। देखिए अवनालिका अपर्दन क्या है, कहते हैं जल ढाल की और जब जो है नलियों में बहता है तो वहाँ मृदा के कणों को जो उखाड़ कर बहा ले जाता है और इसे अवनालिका बन जाती है। ये धीरे धीरे गहरी और चौड़ी होकर विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाती है, और इस प्रकार अपर्दन को जो है अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इस प्रकार के अपर्दित भूमि को जो है वो खत भूमि भी कहते हैं। हमारे देश के दो नदियां यमुना और चंबल ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र को उखित भूमि में बदल दिया है। कहते हैं बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में भी इस तरह के अपर्दन है, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, तो इस तरह के जो है अवनालिका अपर्दन काफ़ी मानने में जो है भूमि को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अंतिम दो प्रकार के अपर्दन कई कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक जल और प्रवाह की मात्रा और गति, मृदा की अपर्दित होने की क्षमता, ढाल का स्वरूप और मृदा के जो है गठन का बनावट, वर्षण और स्वरूप तथा वनस्पति के आवरण पर डिपेंड करता है। यानी ये कई मानने में इम्पोर्टेंट है कि ये जो है अपर्दन कई कारकों पर प्रभावित करते हैं, और ये कारक जल जो है प्रभाव की मात्रा और गति भी हो सकती है, या मृदा की अपर्दित होने की क्षमता भी हो सकती है, या ढाल का स्वरूप भी हो सकता है, या मृदा की जो है गठन का बनावट भी हो सकता है, या वर्षण का स्वरूप तथा वनस्पति का आवरण भी इसके रूप में देखा जा सकता है। पवन अपर्दन में जो है पवनों या आंधियों की गति और बराबरता और वनस्पति आवरण मुख्य कारक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं सागर की लहरें उन तटवर्ती क्षेत्रों में अपर्दन करती है जो चूने के पत्थर जैसी कमजोर शैलों से बने हुए होते हैं, और इस प्रकार के अपर्दन केरल के तट पर काफ़ी बड़े पैमानों पर होता है। पर्वतीय क्षेत्र और नदी द्रोणियों में जो है नदी द्वारा जो है मार्ग बदलने और हिमपात से मृदा का बहुत अधिक अपर्दन होता है, जो कि कई मानने में इम्पोर्टेंट भी होता है। यदि हम बात यहाँ पर करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में या समरी के रूप में ये बातें आपको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि सबका निचोड़ यहाँ पर यही है। कहते हैं प्राकृतिक शक्ति या मानव क्रियाओं से मृदा के अपर्दन को हटने की प्रक्रिया को जो है मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी या तो प्राकृतिक शक्ति हो सकती है या मानव क्रियाकलाप होता है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो परत है अपर्दन होती है, इसे मिट्टी अपर्दन कहते हैं। मृदा का अपर्दन 4 प्रकार से होती है: पवन अपर्दन, परतदार अपर्दन और नालिका अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। यानी 4 प्रकार से जो है इसकी मिट्टी का अपर्दन होता है। ठीक है। मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में जल प्रभाव की मात्रा को देखा जा सकता है, उसकी गति, ढाल का स्वरूप और मृदाओं के गठन और बनावट तथा पवनों की बारंबारता और गति। तो इन्हीं चीज़ों पर जो है काफ़ी ये डिपेंड करता है। तो इसी के साथ जो हमारा मृदा अपर्दन खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सभी क्लास के बच्चों के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें 2 बातें कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हित में रहेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है
त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है होम पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको हर वीडियो जो है आपके प्रतीक्षा कर रहा है। जो वीडियो आपकी क्लास के लिए आपके लिए ज़रूरी है उस वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।